As you all know, the applications for Step Intern 2022 are open right now. So I have invited Anshi. She was Step Intern 2021 and upcoming Summer Intern 2022 at Google, so that she can share some tips and strategies how you can prepare for your Step interviews. So stay tuned. Hi everyone. What was your strategy next 2 weeks में मान लो तुम्हारे interviews, so how will you prepare right now? First thing, the most important thing, which like a Googler for advice for giving Google interview, Lead Code is the most important platform for practicing for Google interviews. Lead Code medium level, that is the minimum level of questions that you get. Don't expect anything easier than that. अगर तुम्हारा interview is in the coming 2 weeks, one thing I would say is don't focus on studying new topics. I don't think anything 2 weeks preparation won't do much difference in your interview performance. Main important thing to at this stage होगी is your state of mind on the day of interview. ये तो मतलब कितनी बार सुनते हैं कि मतलब इंटरव्यू जितना भी होता है इट्स 40% योर हार्ड वर्क, 60% लक है. यू रिलैक्स, तुम एंग्जाइटी तुम्हारी कितनी है, मतलब तुम फोकस कर पा रहे हो या नहीं. बट ऑब्वियसली पढ़ाई तो करी लास्ट 2 weeks में. जब मेरा इंटरव्यू की डेट्स आ गई थी, फाइनल आ गई थी, व्हेन इट केम मेरा 2 weeks लेटर ही था. तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई स्टॉप स्टडीइंग न्यू टॉपिक्स. आई रिवाइज्ड ऑल द नेम्ड एल्गोरिथम दैट आई हैड ऑलरेडी स्टडीड. I revised all the time complexities, all the space complexities, all the advanced data structures, and I was mostly studying all the doubts which my friends were discussing in the group. So we had this WhatsApp group, Khushbu was also there, where we were like, we used to solve questions together. Everybody used to send their doubts. So I used to mostly look at those questions कि मतलब मेरे जो friends हैं, जो वो लोग जो जिन questions है वो लोग अटक रहे हैं, जिनको doubts आ रहे हैं, because इस point तक हम सब बहुत questions कर चुके थे. मतलब हमने mostly जो भी सारे type of questions में cover कर लिए थे, तो ज्यादा न्यू पॉइंट में वैसे स्कोप था नहीं. तो जो भी अब क्वेश्चंस उभर के आ रहे थे, दे वर मोस्टली जिसमें लोगों को डाउट्स हो रहे थे. सो आई वाज फोकसिंग ऑन दैट ओनली. So if you have such a community or you've been practicing with your friends, so maybe look at the questions जो तुम्हारे दोस्तों को भी doubts आ रहे हैं वगैरह वगैरह. पेप कोडिंग की एक इंटरव्यू की क्वेश्चन की लिस्ट है जो मुझे बहुत यूजफुल लगी थी. खैर वो मैंने बहुत पहले स्टार्ट करने की कोशिश करी थी, तो लगा तुम्हारा 1 month में दूर है इंटरव्यू, so you could probably refer to that. So उन्होंने specifically interview के हिसाब से important questions they have listed out topic wise. Very very nice. वो I can send you the link. Maybe you can share it in the description, etc. That was one thing. Also, when you are practicing, make sure that you practice random questions on Lead Code. Usually, when we start practicing, we look okay. हमने पहले stacks पढ़ा, stacks से questions करे, हमने queues पढ़ा, फिर हमने queues से questions करे. तो if I'm doing queues के questions, I know this question that I'm doing, उसका solution queues, stacks and queues से ही है. But when I'm picking a random question, I don't know उसका solution क्या है. ठीक है, that is the one thing which लोग मिस आउट कर देते हैं कि अगर तुम्हें पहले उनको पहले से पता होता है कि मैं इस टॉपिक का क्वेश्चन कर रही हूँ तो ये इसी डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व होगा. तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में तो यू गोना गेट अ वेग क्वेश्चन, यू डोंट नो कि इसका सोल्यूशन कौन से डेटा स्ट्रक्चर से होने वाला है. So you need to be able to figure that out as well. So practice random questions from Lead Code during these last days, so you can check कि मतलब whether I'm able to figure out कि कौन सी डेटा स्ट्रक्चर से करना है. Also time your questions. Interview bit is a good platform if you want to time your questions. पर मतलब वो एक questions Lead Code वाला, तो probably एक time it yourself and try to do it as fast as you can. Yeah. और another point I would like to add is कि अगर तुम्हारे पास है अभी 1 month, सो व्हाट यू कैन डू इज कि एक मॉक इंटरव्यू जरूर ट्राई करो, एटलीस्ट एक दो तो दो. एक तो कोई प्लेटफॉर्म था जो तुमने ही शेयर किया था, IGDTU वालों ने मेरे साथ, क्विक सॉर्ट. या क्विक सॉर्ट. सो उनके उसमें एक लड़की ने मेरा इंटरव्यू लिया था, काफी बढ़िया. लाइक आई गेस फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू था वो मेरी लाइफ का, बट उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था ना, मुझे नहीं लगता कि मेरा वैसा इंटरव्यू जाता अगर मैंने वो मॉक इंटरव्यू नहीं दिया होता. Really mock interviews are very 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 helpful. Yeah, definitely. So you can use Quicksort, you can go on Lead Code. Lead Code ने भी अभी न्यू फीचर लॉन्च किया है मॉक इंटरव्यूज के लिए. देन देयर इज इंटरव्यू बिट, उस पे कितने मर्जी मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो तुम. एक दो और अलग वेबसाइट्स हैं बट मुझे उनके नाम नहीं याद आ रहे, तो यू कैन गूगल, और नहीं तो फ्रेंड्स के साथ हमेशा ही बढ़िया रहता है. फ्रेंड्स के साथ लो, इजीली तुम कंफर्टेबल भी होगे. सो द मेन थिंग इज कि जब तुम एक वीडियो कॉल पे और एक बंदा तुम्हें देख रहा है और क्वेश्चन बता रहा है,
उस टाइम तुम कितना मतलब काम होके सोच सकते हो क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि स्क्रीन के सामने प्रोबेबली तुम कर लो, बट देन जैसे ही कोई बंदा तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारे पास एक परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है थोड़ी सी, तो उसको तुम कैसे ओवरकम करोगे, समझ रहे हो? तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा होना चाहिए. सो दैट्स अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड. हाँ, obviously, very good point. I totally missed that. Because like when you are taking mock interviews अपने friends के, that also helps. Because when you're preparing as an interviewer के point of view से कि ये question है, इसका वो है, तो मतलब थोड़ा सा तुम्हें भी प्रैक्टिस होती है कि एक इंटरव्यूअर किस तरीके से सोच सकता है. तो ट्राई टेकिंग मॉक इंटरव्यूज अपने दोस्तों के भी, हेल्प ईच अदर आउट. या डेफिनेटली. एंड मतलब कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसके कारण लाइक बिहेवियरल चीजें आ जाती हैं, वो थोड़ी जिसके कारण वो बहुत डिपेंड करते हैं कि आपका राउंड कैसे जाएगा. लाइक कि आप कैसे मतलब एक इंटरव्यू को अप्रोच कर रहे हो. अगर वो आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है तो आप बहुत ही लाइकली हो कि आप हद नर्वस होगे, तो आप उसे मैसअप कर दोगे. अगर आप उसे एक ऐसा नॉर्मल टॉक लेके चल रहे हो और जो सामने आपका बंदा है, मे बी जैसे अब मुझे आदत है कि मैं किसी भी एज के बंदे से नॉर्मली बात कर सकती हूँ. हम सब लोगों ने टीचर्स वगैरह से इतनों से बात की है. ठीक है, कोई नया बंदा है, जैसे कोई भी देख रही है लड़की और उसका पहला इंटरव्यू है, उसके सामने इंटरव्यूअर आया जो कि 52 की एज का है, वो आधी तो वहीं खत्म हो जाएगी कि भाई इससे बात कैसे करूं, मतलब कि कैसे कम्युनिकेट करे अच्छे से, और वो नर्वसनेस आ जाती है. तो इन चीजों का काफी फर्क पड़ता है जो कि हम कभी कंसिडरेशन में नहीं लेते. और मे बी ये भी हो जाता है कई बार कि वो इंडियन नहीं हो, उनके एक्सेंट अलग हो, ये सब चीजें भी आ जाती हैं. लाइक मैं बताती हूँ. या सो देखो, मेरे एक इंटरव्यू के एक्सेंट होने बड़ी प्रॉब्लम है, समझ तो बोल क्या रहा है. होता है, ये होता है, पता है. एंड देन देयर वाज स्टेप इंटरव्यू जब थे मेरे मेरे दोनों एक ही दिन पे थे, वो भी सिर्फ आधे घंटे की गैप पे. ठीक है. एंड द फर्स्ट इंटरव्यूअर वाज सो चिल, मतलब वो लिटरली ना बेड पे था और वो लेटा हुआ था. ही वाज लाइक, खुशबू जो करना है तुम करो. और मतलब वो मुझे तो ऐसा ही लग रहा था वो कुछ और साथ में काम कर रहा है, और ही वाज लाइक हाँ 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 करो, हिंदी में बोल रहा था मुझसे बिल्कुल आराम से. सो बहुत चिल गया. सेकेंड इंटरव्यू मेरा अच्छा गया, बट द इंटरव्यूअर भाई मतलब उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट बंदा. लाइक मैंने पूरे 40 मिनट के इंटरव्यू में उसके मुंह पे एक स्माइल नहीं देखी. उसने नहीं कहीं मुझे एनकरेज किया बिल्कुल भी. इट वाज लाइक तुम सोचो तुम्हें क्या लगता है, तुम मतलब वेरी Oh वियर्ड. no. और लाइक उसके सामने तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गलती से हिंदी भी ना निकल जाए, वो तो वहीं काट देगा. सो मतलब बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकते हैं, तो किसी भी चीज को सब दिल पे नहीं लेना. अब इसके बाद थर्ड ईयर में जब मेरा गूगल इंटरव्यूज थे, ऐसा नहीं था कि मतलब वो वाला इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिमाग में मेरे था कि वो क्या हुआ था मेरे साथ उस टाइम, और वो उसके कारण थोड़ा नर्वस थी मैं. बट मैंने बहुत ही कामली लिया. लाइक मैं बताती हूँ, एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ. मेरी गूगल इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाली वीडियो में भी है ये शेयर्ड, सो तुम वहां भी देख सकते हो इसको. मैं यही बता रही हूँ कि माइंडसेट का बहुत फर्क पड़ता है कि तुम किस माइंडसेट में हो. अगर तुम मतलब उसे ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट लेके चल रहे हो कि गूगल नहीं मिला तो कुछ नहीं और यही आखिरी, सब कुछ दुनिया खत्म हो जाएगी, तो तुम मैसअप करने के बहुत हाई चांसेस हैं. सो मतलब इसको काफी ऐसे लेके चलो कि तुम तैयारी तो कर ही रहे हो, बीच में एक मॉक टेस्ट और दे दिया, आराम से निकाल दो बस, चिल चिल होके, है ना. अभी नहीं होएगी अच्छी तैयारी तो आगे हो जाएगी, थर्ड ईयर में भी आएगा यही मौका. अगर तुमने तब तक तैयारी करनी नहीं छोड़ी तो तुम्हें थर्ड ईयर में मिल जाएगी. अगर तुम मौके तो बहुत आएंगे. अभी या स्वी का भी आएगा, गूगल ने 6 मंथ इंटर्नशिप भी स्टार्ट कर दी, फिर फुल टाइम का भी निकलते हैं. या और सिर्फ गूगल ही थोड़ी ना है, डब्ल्यू माइक्रोसॉफ्ट हो गया, amazon हो गया, गोल्डमैन सैक हो गया, देन गूगल हो गया, देन हमारी अडोबी हो गई, और कौन कौन सी जेपीएमसी, कंपनीज है, जेपीएमसी हो गई, जेपी मॉर्गन, बढ़िया. और वेल्स फार्गो है. हाँ, फ्लिपकार्ट हो गई, अब कितनी बड़ी सारी सारी है हो यार. गई भाई, लिंक्डइन. ओरेकल है, लिंक्डइन है. सो वही है, मैं ये बता रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है. अगर तुम स्टेप इंटर्न को ऐसे लेके चलो कि इसके बहाने मैं अपनी तैयारी शुरू कर रही हूँ, समझ रहे हो? अगर तुमने अभी तक नहीं भी करी है, तुम अपनी तैयारी शुरू कर दो और वो करते रहो. ये नहीं कि स्टेप के लिए कर रहे हो सिर्फ, उसके आगे भी कंटिन्यू रखो, तो तुम सेट हो भाई. तुम थर्ड ईयर तक, फोर्थ ईयर तक बिल्कुल सेट हो. बट अगर तुम ये सोच के चलोगे कि स्टेप पे सब कुछ है, इसमें रिजेक्शन आ गया, खत्म, मैं नहीं कर रही आगे, तो खत्म हो जाओगे. तो करते रहना, ठीक है. सो
यही था, मतलब हमने तो काफी कुछ डिस्कस किया कि कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे अंशी ने भी की थी एंड हमारे क्या एक्सपीरियंसेस रहे थे। आई होप तुम्हें कुछ समझ में आया और तुम थोड़े चिल रहो और आराम से इसकी प्रिपरेशन करो। अगर कोई डाउट्स है तो तुम कमेंट्स में ऑब्वियसली डाल सकते हो, हम बता देंगे कि क्या सीन है। एंड अंशी को जाके लिंक्डइन पे फॉलो करो। मैं आई ट्राई टू एक्सेप्ट और जगह पर बहुत सारी आई है, तो अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो सॉरी। बहुत ज्यादा भरा होता है लिंक्डइन, वो वैसे मैं ऐसे लॉस्ट रहती हूँ, फोन यूज करना बड़ी सरदर्दी लगती है मेरे को। Yeah. So I hope you like this episode and you got answers of all your questions. If you have any more doubts, put them in the comments. We will be happy to help you out. And if you want me to make any more videos, you can tell me in the comments below. If you have seen this video till now, you should definitely put a comment that I have seen the video till the very end. And all the best for your interviews. I will see you super soon. Goodbye.